Good afternoon, everybody. Good afternoon. Sat Sri Akal Kulveer. Radhe Radhe Madhur. God bless you. Dim Jim. Sparsh. God bless you. God bless you, Rahul. I'm good. Thank you. God bless you, Mayank. No, no, Sagar. Any magistrate can take it. It'll be a judicial confession during investigation. Good afternoon, Amiteshwar. Acha, okay. Please raise a ticket, Archana. I'll also ask an academy, please raise a ticket on complaint ticket. Good afternoon. God bless you, Samiksha. Good afternoon, Zinia. God bless you, Ridhima. Good afternoon, everybody. Thank you, Sambhavna, for your flowers. Okay, I hope everybody's joined. We'll start. Chale, let's start today's BNSS. Yesterday, we were on the topic of execution of sentences. We have seen that in criminal law or in CRPC or in BNSS now, there can be only limited executions. There can be death penalty, imprisonment, or fine. And at best, there can be compensation. Beyond these four, कुछ और हो ही नहीं सकता. इसलिए इन चारों को डील किया हुआ है in this chapter. Yesterday, we first discussed the law regarding execution of a death penalty. And then we went on to discuss the execution of imprisonment. What is a warrant of imprisonment? When does a judge give it to the jailer? And how he returns it after the whole uh, imprisonment has been accorded. We then came to the third type of execution, which is imprisonment in lieu of fine or levy of fine. Now, since we had already covered imprisonment in lieu of fine earlier, so that is why that need not be covered again. That has already been done. But there is another way that just in case the person does not want to go for imprisonment, then is there any way out? Yes, the way is that the fine can be levied against the property of the convict. For this purpose, we saw that it can be now against the movable property or any rent, etc., which is coming from his immovable property. अगर तो मूवेबल प्रॉपर्टी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वी कैन सीधा ऑक्शन करके ला सकते हैं पैसा. और अगर immovable property है, naturally the record is with the collector of the district. So naturally we will have to invoke the collector who will now do the needful. He will attach or he will get the areas attached and then send them across to the court. कल हमने यहाँ तक कवर किया था. We have not completed this section. Let's now complete this section on this. So imprisonment in lieu of fine was already covered right in the beginning. So that is one type of execution. So please remember, mains का question कई बार आ जाता है. How can the sentence of fine be executed? और ये 10 नंबर 12 नंबर का आ जाता है. So whenever such a question comes, how can a fine be executed? So please remember, execution के हम दो हिस्सों में बांटेंगे. एक होगा execution by imprisonment in lieu of fine,
and the other way is what is given here. So please remember, इसको बहुत ध्यान से, इसीलिए 10 नंबर का क्वेश्चन आता है. और अब naturally when we are dealing with लेविंग ऑफ फाइन, तो वो उसका तरीका यहां दिया गया है. तो आपको दो दो सेक्शंस डिटेल में डील करने पड़ेंगे. द फर्स्ट वन डीलिंग विद इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन, तो बड़ा लंबा है वो आंसर पूरा, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें आईपीसी भी इन्वॉल्व हो जाती है. और दूसरा है लेविंग ऑफ फाइन, जो हमने यहां देखा है. सो दो हिस्सों में आपने बांटना है. And at the end, you will conclude that in case a person has undergone imprisonment for fine, then there cannot be any levy of fine. Levy of fine तभी होगा अगर imprisonment नहीं हुई. Then only naturally it will be covered here. Now let's complete the lecture जो हमने कल section किया था. We now go on to subsection 2. The state government may make rules regulating the manner in which warrants under clause A of subsection 1 are to be executed. And for the summary determination of any claims made by any person other than the offender in respect of any property attached in execution of such warrant. अब naturally क्योंकि आप प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर रहे हो, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के एरियर्स ले रहे हो, so many things you are doing. So उसके लिए we need some rules to be made by the state government. So naturally state government will make the appropriate rules, including कि बाई चांस कोई और कहे कि जी ये इसकी मूवेबल प्रॉपर्टी अकेली नहीं है, ये ट्रक इसका नहीं है मेरा भी है, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द प्रोसीजर. या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आप जिसका एरियर्स ले रहे हो वो कहता है जी इसकी नहीं है, ये तो मेरी है. In that case, what will be the procedure? So all these procedures will be in the form of rules which will be laid down for levying of fines. Subsection 3, where the court issues a warrant to the collector for immovable property ke arrears, the collector shall realize the amount in accordance with the law related to recovery of arrears of land revenue. तो जहां पे हमने उसको बोल दिया कि तुम पैसा उगाओ और जो भी है एरियर्स, तो कौन सा लॉ फॉलो करेगा? लैंड रेवेन्यू के लॉज फॉलो करेगा. सो जब भी उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई भी एरियर लेना है, तो नेचुरली व्हाट विल बी द लॉ व्हिच विल बी फॉलोड? कलेक्टर के पास तो एक ही लॉ है अपना, व्हिच इज लैंड रेवेन्यू. तो उसका एरियर्स कैसे लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी के एरियर्स लिए जाएंगे, एंड देन दे विल बी ट्रांसमिटेड टू द कोर्ट, provided that no such warrant shall be executed by the arrest or detention in prison of the offender. Now, please remember, by chance land, क्योंकि रेवेन्यू के मामलों में अगर एरियर कोई नहीं देता तो अरेस्ट का प्रोविजन होता है. तो अब पता चला हम एक तो फाइन लेवी कर रहे हैं, बाई चांस लैंड रेवेन्यू के एरियर्स नहीं रियलाइज कर पा रहा, और वो कही जी मैं तुझे रेवेन्यू के अंदर बंद कर देता हूं, तो एक तरह से डबल मार पड़ जाएगी उसको. इसलिए हम ये चीज मना कर रहे हैं कि एरियर्स लेवी करते वक्त कलेक्टर को अगर लगे कि सपोज वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा या जो कुछ भी कर रहा है, और वो कहता है मैं लैंड रेवेन्यू लॉज के मुताबिक तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूं या डिटेंशन में ला सकता हूं, वो अलाउड नहीं है. क्योंकि हम तो पहली एक ऑफेंस के लिए निकाल रहे हैं, अब उस ऑफेंस का पैसा उतारने के लिए आपने दूसरा ऑफेंस बना दिया और अब उसको बंद भी कर दिया. दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी अलाउड, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेविंग द फाइन ऑफ अनदर ऑफेंस, और उसको रियलाइज करने के लिए आप एक और ऑफेंस करवा रहे हो. सो ये चीज अलाउड नहीं है, एंड दैट इज व्हाई दो लैंड रेवेन्यू लॉज विल अप्लाई फॉर लेविंग द एरियाज, बट the arrest provisions of Land Revenue Act will not apply. Now, once this warrant has been executed, levy or fine, then next section comes into being. Section 462. A warrant issued under clause A of subsection 1 of section 461 by any court may be executed within the local jurisdiction of such court.
and it will authorize the attachment and sale of any such property outside such jurisdiction when it is endorsed by the district magistrate within whose local jurisdiction whose property is found. एक बेसिक लॉ हमने जब हम सीपीसी पढ़ रहे थे, जो मेरे से पढ़ चुके, हमने क्या देखा था, सिविल कोर्ट का या कोई भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कितना होता है उसके अपने एरिया का। सीपीसी में हमने देखा था कि वो अपने एरिया से बाहर ना तो कुछ सेल कर सकता है, ना कुछ अटैच कर सकता है, यहां तक कि विटनेस भी नहीं बुला सकता। वही वही थॉट प्रोसेस यहां है कि जब भी मुझे लेवी करना है फाइन, मूवेबल प्रॉपर्टी सपोज मेरे एरिया में नहीं है तो मैं डायरेक्टली लेवी नहीं कर सकता, या इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरे एरिया में नहीं है तो फिर सबसे पहले हम उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की या कलेक्टर की हेल्प लेंगे कि आप सर्टिफाई करो कि ये उसके एरिया में है, एंड देन उसके एरिया में वहीं बेचेंगे, या फिर अगर जरूरत पड़े तो यहाँ अगर लाया जा सकता है तो यहाँ बेचेंगे। सो दैट इज व्हाई द जुरिस्डिक्शन टू लेवी फाइन is only restricted to the jurisdiction of the court. If it has to go outside its jurisdiction, then it must first confirm कि प्रॉपर्टी है भी उसकी कि नहीं। नहीं तो क्या पता, मेरे एरिया में तो मुझे पता चल जाएगा, मैं वहां के थाने को बोल दूंगा, वो पता लगा देगा। बट जो मेरे एरिया नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना पुलिस है ना कुछ है, गलत ऑर्डर दे दिया तो पता चला किसी और की गाड़ी बेच दी और उसने केस डाल दिया हमारे ऊपर, आप भी पार्टी बन गए, तो कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी। दैट इज द रीजन दिस थिंग हैज बीन, दिस इज द रीजन कि क्यों सीपीसी में भी और यहां भी ये इसीलिए आपके अपने जुरिस्डिक्शन में आप बेचने का ऑर्डर दे सकते हैं, आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं। आपको पहले जो वहां का कलेक्टर होगा उसका सर्टिफिकेशन चाहिए दैट दिस प्रॉपर्टी स्टैंड्स इन द नेम ऑफ दैट पर्सन, एंड नाउ ऑफ कोर्स आई कैन टेक एनी फर्दर एक्शन। तो जब तक मुझे उस प्रॉपर्टी के बारे में कलेक्टर रेटिफाई नहीं करता, आई कांट टेक अ डिसीजन फॉर एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल which lies outside my jurisdiction. I hope everybody is clear on all these points. We now go on to the next section, section 467. Oh, sorry, 463. 463 deals with those matters कि सपोज कोई मामला आ जाता है जहां सीआरपीसी लागू नहीं होती, जहां बीएनएसएस लागू नहीं होता, फॉर एग्जांपल नागालैंड, फॉर एग्जांपल ट्राइबल एरियाज। तो ऐसे केसेस में क्या हम अब लेवी नहीं कर सकते, उस चीज को कवर करता है ये वाला सेक्शन। सो लेट्स सी दिस सेक्शन। Notwithstanding anything contained in this Sanhita or in any other law for the time being in force, when an offender has been sentenced to pay a fine by a criminal court in any territory to which this Sanhita does not extend, यानी कि नागालैंड, ट्राइबल एरियाज या और जहां भी सीआरपीसी लागू नहीं होती। And the court passing the sentence, ट्राइबल एरियाज का कोर्ट, नागालैंड का कोर्ट passing the sentence issues a warrant to the collector of a district in the territories to which this code extends. नागालैंड के मैजिस्ट्रेट ने एक आदेश दिया कि इसका फाइन लेवी किया जाए, इसकी प्रॉपर्टी बेच के, इसकी मूवेबल प्रॉपर्टी, इसके ट्रक बेच के। इसके अब वहां तो सीआरपीसी बीएनएसएस लागू नहीं होता, और जो उसकी प्रॉपर्टी है वो है से असम में जहां सीआरपीसी लागू होती है। नाउ व्हाट विल बी द प्रोसीजर? पहला पॉइंट है क्या मैं कर सकता हूं? द आंसर इज यस। तो फिर उसका व्हाट विल बी द प्रोसीजर, आने वाला पार्ट अब इसको बता रहा है। He issues a warrant to the collector of a district, तो सीधा उसके कलेक्टर को वो नोटिस भेजेगा, to which this Sanhita extends, authorizing him to realize the amount as if it were area of land revenue, and such warrant shall be deemed to be a warrant issued under subsection 1 of section 461 by a court in the territories to which this code
extends, this संहिता extends. तो ऐसा माना जाएगा कि as if BNSS अप्लाई करता है और वो वैलिड ऑर्डर है. And the provisions of subsection 3 of the said section to as to execution shall apply accordingly. तो जो हमने पूरा लेवी का पढ़ा है वो as it is apply होगा, as if यहाँ पे भी BNSS लागू होता है. सो इवन वो एरियाज जहां पे BNSS लागू नहीं हो रहा और वो लेवी करना चाहे फाइन अपने से बाहर के जुरिस्डिक्शन में जहां CRPC या BNSS लागू होता है तो वो कर सकते हैं. प्रोसीजर सेम रहेगा. अब नेचुरली प्रॉपर्टी जिसके एरिया में उसके कलेक्टर को वो डायरेक्टली लिख सकता है और जो हमने अभी तक प्रोसीजर पढ़ा है सेम प्रोसीजर कैन बी फॉलोड एज इफ यहाँ पे BNSS अप्लाई होता है. We now go on to section 464 corresponding to section 424 of CRPC. कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया ये वाला. फाइन पे कैसे किया जाता है? फाइन पे करने का तरीका क्या है? ये अकेला सेक्शन है जो फाइन पे करने का तरीके को बता रहा है. When an offender has been sentenced to fine only and to imprisonment in default of the payment of fine and the fine is not paid forthwith. Fine only का मतलब क्या हुआ? The sentence or the offense is punishable with only fine plus the sentence can be imprisonment or fine and I have not given imprisonment, I have given fine. इन दोनों eventualities को यहां कवर किया गया. So whenever he has been sentenced to fine only, और अगर वो फाइन नहीं देता, imprisonment in lieu of fine has been already been accorded, और अब वो immediate फाइन नहीं दे पाता, तो क्वेश्चन क्या उठता है कि क्या हम इसको सीधा जेल भेज देंगे? क्योंकि imprisonment तो है ही नहीं. जो सब्सटैंटिव imprisonment होती है, जो ऑफेंस की सजा वो तो दी नहीं हमने, तो सिर्फ फाइन है जहां और imprisonment in lieu of fine है जहां, और फाइन इमीडिएट वो नहीं देता कोर्ट में. वो उसने बोला ओके तुझे 10,000 रुपए या 50,000 रुपए फाइन, वो कहता जी नहीं है, तो इमीडिएटली हम उसको इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन पे भेजे. क्योंकि जहां पे सब्सटैंटिव सेंटेंस साथ में होता है वहां तो टाइम होता है कि चल जब तक तू 3 साल वो काट रहा है तब तक तुझे टाइम दे देते हैं, उसके बाद दे देना. एंड इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन इज ऑलवेज आफ्टर द सब्सटैंटिव सेंटेंस, तो वहां तो टेंशन नहीं है, वहां तो टाइम है. अब यहाँ क्या करें? उसने कह दिया ओके फाइन 50,000 रुपए, नॉट पेइंग द फाइन, ओके 1 ईयर फाइन, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट. वो कहता है जी मेरे पास तो 50,000 नहीं है अभी. नाउ दिस इज अ पीस ऑफ बेनिफिशिएंट लेजिस्लेशन. मियरली क्योंकि आप गरीब हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हम मौका नहीं देंगे अपने आप को बचाने का. सो हाउ विल आई हेल्प यू? द कोर्ट में ए order that the fine shall be payable either in full or on before a date not more than 30 days from the date of the order. तो अगर तो छोटा फाइन है 10,000 रुपए का फाइन है तो मैं तुझे 30 दिन की मोहलत दे रहा हूं. 30 दिन के बाद पूरा का पूरा फाइन चुकाना है. बाई चांस ज्यादा है फाइन, 50,000 है, मैं तो 50,000 मैं तो 30 दिन में नहीं पूरा कर सकता. देन इन दैट केस or in 2 or 3 installments, so maximum 3 installments, of which the first shall be payable on or before a date not more than 30 days from the date of the order, and the other or others at an interval or at intervals as the case may be of not more than 30 days. तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर तो छोटा फाइन है
तो हम उसको कहेंगे एक ही तो 30 दिन के अंदर ले आओ। अगर बड़ा है फाइन तो हम 3 इंस्टॉलमेंट तक दे सकते हैं। पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो 30 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, और उनके बीच का गैप भी 30 दिन से ज्यादा नहीं होगा। सो दैट मीन्स अगर मैंने 3 इंस्टॉलमेंट का आपको टाइम दिया, इसका पहली इंस्टॉलमेंट 30 डेज के बाद, दूसरी इंस्टॉलमेंट 60 दिन के बाद, और तीसरी इंस्टॉलमेंट 90 दिन के बाद, दैट मीन्स 90 डेज में मैक्सिमम आपको पूरा फाइन चुकाना पड़ेगा। और यही क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आया हुआ है कि मैक्सिमम कितने टाइम मुझे मिलता है फाइन चुकाने का। सो 90 डेज का टाइम है, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट अलाउड है मुझे एज पर लॉ। एक चीज और है, एज पर लॉ मैं 2 इंस्टॉलमेंट्स का टाइम 30 दिन से ज्यादा नहीं दे सकता। ये नहीं कि पहली इंस्टॉलमेंट तो चलो 30 दिन में ले आओ, दूसरी 60 दिन में ले आओ, तीसरी 6 महीने में ले आओ, वो कोई प्रोविजन नहीं है यहाँ पे। बी, सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। हमने पढ़ा था सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस फॉर बेल पर्पसेस। Suspension of sentence meant substantive substance imprisonment. But can imprisonment in lieu of fine be suspended? यहां पे है अकेला प्रोविजन है ये, जहां लिखा हुआ है यस इट कैन बी डन। ये बारीकियां अगर आपको नहीं आती तो ये प्रीलिम्स में बहुत भारी पड़ती है। यू नो नो वेयर इज इट रिटन, और कहीं सोच भी नहीं सकता आदमी। आदमी जब भी देखता है ना इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन, तो पीछे जाता है वही 30 सेक्शन 30 आसपास कि वहीं लिखा होगा, वहां तो नहीं लिखा। या फिर हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में जाते हैं। सेंटेंस आई टॉट यू अर्लियर, इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन इज नॉट अ सेंटेंस। तो फिर क्या इसका कहीं कोई सस्पेंशन नहीं हो सकता? ये अकेली जगह है जहां लिखा है सस्पेंशन हो सकता है। सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट and release the offender on the execution by the offender of a bond with or without sureties as the court thinks fit, conditions for his appearance before the court on or date or dates on or before which payment of fine or installments thereof as the case may be is to be made. अब जो मैं आपको 90 दिन का टाइम दे रहा हूं, तो मेरा इम्प्रिजनमेंट ऑफ इन लिeu ऑफ फाइन तो इमीडिएट शुरू हो जाता है। अगर पेमेंट नहीं कर रहा तो मेरा सस्पेंडेड रहेगा जब तक मैं पेमेंट कर रहा हूं। And if the amount of fine or any installment, as the case may be, is not realized on or before the latest date on which it is payable, 90 दिन, under the order, the court may direct the sentence of imprisonment to be carried out in execution at once. तो फिर अब 90 दिन हो गए, तो हम अब ये नहीं और मोहलत नहीं देंगे, अब आपको अंदर कर देंगे कि अब लाओ, जब दे दोगे पूरा तो तुम्हें छोड़ देंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, पूरे सीआरपीसी में कहीं नहीं मिलता है प्रोविजन कि इंस्टॉलमेंट्स अगर आप पूरे नहीं दे पा रहे तो फिर आपका वो एक बात और है जो हम आईपीसी में पढ़ चुके हैं। सपोज मुझे 50,000 रुपए का मेरे फाइन है, और मैंने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, सपोज 25,000 दे दी मैंने, मुझे 2 इंस्टॉलमेंट दी गई थी, 25,000 दे दी, 25 पड़ी है, 25 का अरेंजमेंट नहीं हुआ मेरा, और जैसे ही मैं उस डेट पे आता हूँ 30 दिन के बाद 60वें दिन, तो कोर्ट कहेगा अंदर जाओ, अब इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन काटो। पर सपोज इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन वाज 6 मंथ्स, तो आधा पैसा तो मैं दे चुका हूं ना, तो अब कितनी होगी मेरी इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन? 3 मंथ्स। तो 3 महीने, अच्छा वो भी अगर मैं अंदर जाके अरेंजमेंट कर देता हूं, तो प्रोपोर्शनेटली जितना मेरा टाइम निकल गया उतना पेमेंट मैंने कर दिया, उतना माफ हो जाएगा। सपोज 3 महीने के अंदर मैं 1.5 महीने में आधा पैसा चुका देता हूँ, फिर तो मैं फ्री हो गया, 1.5 महीना काट लिया, बाकी 1.5 महीने पे कर दिया, नाउ आई कैन गेट आउट। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन में होता है, और यही चीजें मैंने नोट की है इन माई प्रैक्टिस का, जो मैंने टाइम देखा है। कोर्ट को क्लियर नहीं है, मैजिस्ट्रेट तो बिल्कुल क्लियर नहीं है। बहुत बार मैंने देखा है ओनली फाइन दे दिया, उनको समझ नहीं आता क्या करें, सीधा दे देते हैं इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ फाइन। जब उनको ये सेक्शन दिखाया जाता है वो कहते हैं अच्छा 90 दिन की दे देता हूँ।
पर आगे उनको बेसिक्स क्लियर नहीं है इसके. So always be clear because you will have to implement this. So I hope you're all clear on this. मैंने आपको शुरू में एक ऑर्डर दे दिया विद और विदाउट श्योरिटीज कि आप 30 दिन 60 दिन 90 दिन में लाओगे. आपने 30 दिन नहीं आए, मैंने अंदर कर दिया आपको. आपने 60 दिन में नहीं लाए तो 30 दिन वाला माफ हो गया, बाकी अंदर हो गया. आपने 90 वाले दिन में नहीं आए तो 60 वाले माफ हो गए, बाकी जो बचा उतनी इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी. तो इसका मतलब है जब मैं आपका सस्पेंशन हटाऊंगा तो इट विल नॉट बी द ओरिजिनल सेंटेंस. जितना मैं पे कर चुका हूं उतना माइनस करके उतना करूंगा. दैट इज द रीजन. चलिए, वी नाउ गो ऑन टू सबसेक्शन 2. The provisions of subsection 1 shall be applicable also in any case in which an order for the payment of money has been made on non-recovery of which imprisonment may be awarded and the money is not paid forthwith. कम से कम 20 judges have called me up on this matter. कम से कम. Not only my students, some senior also, जो मुझे जानते हैं. काफी सारी जुडिशरी जानती है बिकॉज कईयों के बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं, कई वैसे जानते हैं वगैरह. सो दे टेक द लिबर्टी एंड दे कॉल मी अप कि अनिल जी एक बार जरा इस पॉइंट पे बता दो क्या करें. नॉर्मली क्या होता है जब मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है और सपोज वो पेमेंट नहीं कर रहा तो आप उसको 1 महीने की इंप्रिजनमेंट दे सकते हो. मुझे वो कई बार कहते हैं कि सर इंप्रिजनमेंट हम पहली बार तो हम जब आएंगे विल डिस्कस इन डिटेल इंप्रिजनमेंट का पूरा लॉ. बट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये सेक्शन मेंटेनेंस पे अप्लाई होता है या कोई और ऐसी जगह जहां फाइन नहीं है बट जहां पे अगर आप वहां वाला स्टिपुलेटेड पैसा नहीं देते तो इंप्रिजनमेंट का प्रावधान है. देयर इज अ प्रोविजन इन दैट केस ऑल्सो ये सेक्शन अप्लाई होता है. इसीलिए ये सेक्शन हम मेंटेनेंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज समथिंग विच एज आई टोल्ड यू many judicial officers do not know. इसको बहुत ध्यान से देखना. द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 यानी कि मेंटेनेंस इज नॉट पेड forthwith shall be applicable also in any case in which an order for payment of money has been made. For example, maintenance. Payment of fine नहीं है, money. On non-recovery of which imprisonment may be awarded. Provided अगर उसका पेमेंट नहीं होता तो उसका देन ऑल्टरनेटिव है, उसमें इम्प्रिजनमेंट मिलेगी और मेंटेनेंस में है इम्प्रिजनमेंट. एंड मनी इज नॉट पेड forthwith और वहां पे मेंटेनेंस वो नहीं देता. कोर्ट ने उसको आखिरी डेट दी थी, वो नहीं देता. And if the person against whom the order has been made on being required to enter into a bond such as referred to in this subsection fails to do so, the court may at once pass sentence of imprisonment. तो अब वो उसको इमीडिएटली इंप्रिजन कर सकता है. नॉर्मली कोर्ट्स क्या कंफ्यूज होते हैं मेंटेनेंस के चक्कर में कि 1 महीने की इंप्रिजनमेंट कब दें. और दूसरी बात यह है कि 1 महीना है, नॉट एक महीना फॉर एवरी डिफॉल्ट नहीं होता. एक वो आएंगे हम उस लॉ में तब देखेंगे. बट इसमें बहुत क्लियरली है कि बाई चांस वो नहीं देता तो हम उसको टाइम बांध सकते हैं कि 30 डेज में पे करेगा तुम, या अगर ज्यादा हो गया मेंटेनेंस तो 90 दिन में करेगा. और अगर वो नहीं करता इमीडिएटली हम इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं. So this last subsection deals with all matters which are not fine but which are payable under CRPC, and if the stipulated money is not paid then there is a imprisonment in lieu. Compensation also provided, पर उसमें अगर compensation ना दो तो then imprisonment can be given. अब 357 में imprisonment का प्रावधान नहीं है, बट अगर मेरे कोर्ट ऑर्डर में मैंने लिख दिया कि अगर तुम नहीं पे करोगे तो तुम्हें इंप्रिजनमेंट दी जाएगी, इन दैट केस इट विल अप्लाई. या और भी बड़े लॉज हैं, बट ये तो हम सिर्फ आईपीसी की बात कर रहे हैं. बहुत सारे लोकल लॉज हैं, स्पेशल लॉज हैं जहां प्रोविजंस हैं.
ओके, आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड दिस वेरी 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 टेक्निकल सेक्शन। और जैसा कि मैंने बोला, बहुत कम लोगों को इस सेक्शन का ज्ञान है। माइनस हो जाता, वो मैंने कहा उसमें अगर ये लिखा, ये वहां तो नहीं लिखा, 357 में है, उसमें नहीं लिखा कि अदरवाइज इम्प्रिजनमेंट विल बी ग्रांटेड। अब उसके लिए जस्ट वेट, मैं अभी आऊंगा, एक सेक्शन जो आने वाला है उसमें मैं दोबारा इस पॉइंट को लूंगा, जो कंपनसेशन का। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हैज सेड imprisonment should be the last resort, डिस्ट्रेस वारंट इज द फर्स्ट रिजॉर्ट। तो हमेशा हम पहले इसमें जाएंगे, तब वहां जाएंगे। मेंटेनेंस के लिए अब ये है कि हमने उसको, अगर मैंने उसको बोल दिया कितने हम इंस्टॉलमेंट्स बांट रहे हैं, उसमें नहीं दिया, तो मैं 1 महीने की उसमें सजा है तो वो दे सकता हूं। तो क्वेश्चन ये उठता है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम 1 महीना कब दें। तो वो ये वाला सेक्शन अप्लाई करके देन यू कैन अवॉर्ड 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट। कर सकते हैं, वो मैंने कहा भी आने वाला है, लेट वेट फॉर वन, एक सेक्शन आने वाला है। ओके, क्योंकि उनको लॉ नहीं आता, दैट इज द रीजन। जब भी बात हुई है ना, मैं जब भी, क्योंकि वैसे तो मैं लोअर कोर्ट्स में नहीं गया, बट एक दो बार जब भी गया, एक मेंटेनेंस के लिए गया था, देयर वाज समवन आई वांटेड टू हेल्प, एंड द सेम थिंग। और यू नो, इंटरिम मेंटेनेंस हैज टू बी गिवन इमीडिएटली, और 4 साल से इंटरिम मेंटेनेंस नहीं मिला था। तो मैंने कहा ये इंटरिम ही कहाँ रहा, इस तब तक तो हो जाएगा। इज इट वर्किंग? आई थिंक आई जस्ट कॉल हिम अप। तो एज अ रिजल्ट, यू नो, अब पॉइंट ही होता है, व्हाई डोंट दे गिव? दे आर नॉट अवेयर कि हम करें क्या। तो इंटरिम भी नहीं हो रहा है, सोचो। तो इंटरिम का मतलब क्या है? यू आर नॉट गेटिंग इंटरिम बेनिफिट फॉर 2 years, 3 years। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग एन इंटरिम बेनिफिट? ओके, नाउ प्लीज डोंट फॉरगेट दीज सेक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं हमारे, ये बहुत काम आते हैं जब प्रैक्टिस भी करते हैं या जज भी बनते हैं, तब भी दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। 400 नहीं खत्म हो गया इसका? आई होप आई एम विजिबल। ओके, फाइन। चलिए, अब हम आते हैं जनरल प्रोविजन। ये तो था 3 बेसिक्स, इम्प्रिजनमेंट, डेथ एंड फाइन। अब जनरल प्रोविजंस क्या है? लेट्स सी द जनरल प्रोविजंस। नाउ बिफोर, सिंस वी आर ऑलरेडी ऑन दिस टॉपिक ऑफ compensation and all, I would straightway jump to section 471. Now please be very careful on this. I've yet to see an advocate who knows this section, yet to see, आज तक। 421 सीआरपीसी तो आता है, फाइन वाला तो आता है कईयों को, पर इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है ये सेक्शन। एनी मनी अदर देन अ फाइन, payable by virtue of any order made under this संहिता, मेंटेनेंस, कंपनसेशन या कोई और पैसा जो फाइन नहीं है, ये उसका है।
and the method of recovery of which has not been otherwise expressly provided shall be recoverable as if it was a fine. तो जो भी पैसा है सीआरपीसी में, बीएनएसएस में, वो यही प्रोसीजर होगा जो अब हम पढ़ चुके हैं, यानी डिस्ट्रेस वारंट वहां भी जाएगा. As I told you, I am yet to come across one advocate जिसको ये सेक्शन आता है. Provided that section 461 shall in its application to an order under section 400 क्या है? कॉस्ट्स जो नॉन कॉग्निजेबल में मिलते हैं वो है सेक्शन 400, be construed as if in the proviso of subsection 1 of section 461 after the words and figures under section 395 the words and figures or an order of payment of costs under 400 had been inserted. बस फर्क ये है कि जो 461 में 395 वर्ड यूज हुआ था कॉम्पेंसेशन का, वहां पे आप उसको एज इट इज रखो, 395 की जगह 400 पढ़ लो, बस इतना ही फर्क है. यानी 461 is can be superimposed on 471. बस फर्क इतना है कि वहां पे एक सेक्शन क्योंकि दिया हुआ है, उसकी जगह कंपनसेशन फॉर नॉन कॉग्निजेबल पढ़ लो. सो कंपनसेशन चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का है या कई जगह हमने कंपनसेशन पढ़ा है, उन सब का रिकवरी का मोड क्या है, यही है. आई होप नाउ यू आर क्लियर. यू कैन यूज दिस नाउ इन योर एडवोकेसी. 100 बार मैंने देखा है कि ना जज नहीं ऑर्डर देते बिकॉज दे नॉट अवेयर ऑफ दिस. मेंटेनेंस दे तो दूं अनिल जी, टाइम वो नहीं है, इसमें कुछ कर नहीं सकते. मैं कहा सर 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट है, वो पता नहीं ना कब दे सकते हैं. ये आंसर था जो हमने पिछला सेक्शन पढ़ा है कि कब दे सकते हैं. और अब जितने बाकी पैसे हैं, जितने भी फाइन के अलावा, सारे सेम प्रोसीजर. सो आई होप 461 एंड 471 दोनों को हमेशा याद रखना. और जो इससे पिछले वाला हमने सेक्शन पढ़ा था वो प्रोसीजर कि अगर इंस्टॉलमेंट्स बांध सकता हूं मैं, और अगर इंस्टॉलमेंट नहीं दिए तो फिर इम्प्रिजनमेंट ऑर्डर कर सकता हूं. चलिए वापस आते हैं. जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन. फोर 465 कहा मेंटेनेंस में लिखा है, मैं मेंटेनेंस की बात कर रहा हूं. है है 125 में है लिखा है. ओके. 465. Every warrant for the execution of a sentence may be issued either by the judge or magistrate who passed the sentence or by successor in office. So execution कौन कर सकता है? क्या वो जज कर सकता है जो जिसने सेंटेंस पास किया, उसके अलावा आने वाला जज? आंसर इज यस. तो खुद भी कर सकता है, उसका सक्सेसर इन ऑफिस भी एग्जीक्यूशन. सपोज सेंटेंस पास करने के बाद एग्जीक्यूशन से पहले वो रिटायर हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो जो उसकी जगह आएगा वो भी कर सकता है. 466. अगर कोई कॉन्विक्ट ऑलरेडी सजा काट रहा है, ये क्वेश्चन भी मेंस का और प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. ऑलरेडी एक कॉन्विक्ट है और वो सजा काट रहा है और अब वो जेल तोड़ के भाग गया और अब उसका सेंटेंस भी हो गया, तो कौन सी सजा पहले काटेगा? 426 which corresponds to section 466. When a sentence of death, imprisonment for life or fine is passed under this Sanhita on an escaped convict, जेल तोड़ के भागा हुआ है और अब भागने के बाद उसके ऊपर एक और सेंटेंस आ गया,
shall, subject to the provisions herein before contained, take effect immediately. तो merely क्योंकि कोई भागा हुआ है does not mean that the execution will be held in abeyance. So भागने से execution रुकेगा नहीं. It will be held, it will be done immediately. So herein will take effect immediately. अब जहां पे imprisonment for a term, अब escape convict पे हमने पास कर दिया, 10 साल की सजा दे दी. When a sentence of imprisonment for a term is passed under this code on an escaped convict, if such sentence is severer in kind than the sentence which the convict was undergoing when he escaped, the new sentence shall take effect immediately. जो ज्यादा सीरियस है सेंटेंस वो पहले काटेगा. सो अगर जब वो भागा था, सपोज 5 साल की सजा काट रहा था और अब उसको 10 साल की हो गई, तो अब ये पहले 10 साल की काटेगा. 10 साल काटने के बाद फिर 5 साल काटेगा. If such sentence is not severer in kind than the sentence which such convict was undergoing when he escaped, the new sentence shall take effect after he has suffered imprisonment for the further period equal to that which at the time of his escape remained unexpired of his former sentence. तो सपोज उस पहला वाला सेंटेंस बड़ा था और 5वें साल भाग गया, तो 5 साल ही बचे हैं इसके, तो पहले वो 5 साल काटेगा. सपोज इस केस में 7 साल हुई है, नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट के इसमें 7 साल है, पर पहले ये 5 साल काटेगा क्योंकि 10 साल का वो पार्ट है. सो सेंटेंस जो बड़ा है वो पहले काटेंगे. ए बी, अगर सेंटेंस का कोई हिस्सा मैं पहले काट चुका हूं वो माइनस किया जाएगा. माइनस करने के बाद हो सकता है वो उसे छोटा लगे जो नया सेंटेंस है, तब भी वो बड़ा सेंटेंस था, वो तो काट लिया उसने, तो भी वो पहले काटेगा. सो दिस इज अ लॉ ऑफ एस्केप्ड कॉन्विक्ट. ए, any sentence on an escaped convict will not held in abeyance. Execution will not be held in abeyance. A. B, when he's apprehended and brought to jail, the question arises, which sentence will he undergo first? As a general rule, whichever is a severer sentence will he'll undergo that first. In other words, in case his new sentence is severer than the one which he was serving when he ran away, then he will serve this new sentence. In case the earlier sentence was more severe, notwithstanding the fact that he may have undergone maybe 2/3 of the sentence, even then that will be completed first and then the new sentence will be started. क्यों है? क्योंकि सेंटेंस तो पूरे काटने ही है आपने, तो मेरा कंजेक्टिव तो मैं दे ही रहा हूं आपको. ऐसे मतलब भागा हुए को तो कंकरेंट करेंगे नहीं हम कभी, तो एक सेंटेंस तो पहले खत्म कर लो, नहीं तो क्या पता चला कि पहला सेंटेंस जो है वो आधा टंगा हुआ है. अब मेरा सेंटेंस पहला था ही 2 साल 3 साल और ये है 10 साल, तो नेचुरली मैं पहले ये वाला करवाऊंगा. हाँ, बट ऐसा होता है ना, रेमिशंस में बड़ा फर्क पड़ जाता है. तो रेमिशंस के जेल के मैन्युअल्स में बड़ा फायदा हो जाता है. सो उसमें क्या होता है कि कई बार ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू, वो कहते हैं कि जो 3 साल वाले हैं उनको 6 महीने का रेमिशन दे देते हैं. बड़ी बार होता है. जैसे कोई, मैंने आई रिमेम्बर एक बार जैसे गुरुजी की कोई सेनेटरी आई, तो उन्होंने कहा कि जो दो 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 1 साल वाले हैं उनको माफ, जो 2 साल वाले हैं उनको 8 महीने माफ, जो 3 साल वाले हैं उनको 2 साल माफ. अब ऐसे में तो बाहर निकल जाएगा. दैट इज रीजन. सी सिवियरर में यस, क्योंकि हम इम्प्रिजनमेंट की यहाँ बात कर रहे हैं, तो सी सिवियरर में नॉर्मली क्या होता है, it has to be imprisonment from the angle of imprisonment, no doubt. Severer can also mean a bigger fine, but bigger fine में कितना फर्क पड़ जाएगा. ये तो हो नहीं सकता कि मैं आपको 1 करोड़ का फाइन दे रहा हूँ और एक साल की सजा दे रहा हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता. सो दोनों कंबाइन हो, नो नो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज वेरी माइनर थिंग. रिगरस या सिंपल तो बहुत ही सबसे माइनर चीज होती है. अंडरस्टूड है ना, व्हेन इज ब्रॉट तभी उसकी सजा वो काटना शुरू करेगा.
नेचुरली व्हेन ही इज ब्रॉट, नहीं तो हम उसको कैसे सजा देंगे दोनों? डिपेंड करेगा कोर्ट पे। पर एस्केप कॉन्विक्ट है, हम उसको लड्डू पेड़े थोड़ा खिलाएंगे, तो और जूते मारेंगे उसको, तो कभी नहीं होगा। नेवर एवर कैन अ एस्केप कॉन्विक्ट गेट कंकरेंट सेंटेंस, अनलेस कि कोई बहुत ही एक्सट्रीनियस सर्कमस्टांसेस हो जो बहुत ही रेयर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सारे भाग रहे थे, उन्होंने इसको भी जबरदस्ती उठा लिया, इसको बेहोश करके, जो 100 चीजें होती हैं। बट एक एस्केप्ड कॉन्विक्ट है, इनफैक्ट एस्केप होने की अलग सजा है, वो अलग काटेगा। तो सपोज इज कमिटेड अ मर्डर, एक उसने पहले मर्डर किया हुआ था, अब वो भाग गया, तो अब इसके एक तो मर्डर की होगी, दूसरे वाले मर्डर की, एक जो भागने की सजा है वो भी है, तो बहुत सारी सजा हो जाती है, तो कोई भी कौन कर नहीं देता। ओके, सबसेक्शन 3, for the purposes of subsection 2 a sentence of rigorous imprisonment shall be deemed to be severer in kind of a sentence of simple imprisonment. सपोज बराबर है, अब ये देखेंगे कौन सा रिगरस है कौन सा सिंपल है। वो भी 3 साल है, ये भी 3 साल है, ये वाला रिगरस है, वो वाला सिंपल था, तो पहले ये काटेगा। नहीं फिर तो नहीं, फिर तो इम्प्रिजनमेंट है, ये तो नेचुरली तभी आएगा जब बराबर हो। ओके, आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सारे एग्जीक्यूशन के सेक्शन हैं और बहुत काम आते हैं। चलिए अब आते हैं अब सेक्शन 467। क्वेश्चन ये उठता है कि एक कॉन्विक्ट जो ऑलरेडी सजा काट रहा है, अगर उसको दोबारा सजा हो जाए तो वो कंकरेंट होगी या कंसेक्यूटिव होगी? जब तक हमारा बीएनएसएस में एक ट्रायल में डिफरेंट ऑफेंसेस का लॉ नहीं आया था दैट इट हैज टू बी concurrent और consecutive, it was deemed to be consecutive। वहां तो चेंज हो गया, सेक्शन 31 सीआरपीसी तो चेंज हो गया, बट यहां चेंजेस नहीं हुई। आज भी अगर एक सजा काट रहा है और दूसरी सजा हो जाती है तो कंसेक्यूटिव ही होगा। दैट मींस कंसेक्यूटिव इज द रूल, कंकरेंट इज एन एक्सेप्शन। वो अगर कोर्ट चाहे तो दूसरी सजा देते वक्त तो कह सकता है कि फाइन इसको कंकरेंट कर देते हैं, बट इट विल हैव टू अकॉर्ड रीजंस फॉर दैट। सो जहां हमने देखा था कि वहां चेंज हो गया, सेक्शन 31 सीआरपीसी चेंज हो चुका है, बीएनएसएस में जब हमारे चेंज हो गया था कि वहां पे कंसेक्यूटिव या कंकरेंट दोनों वर्ड लिख दिए गए जो पहले नहीं थे। पहले लिखा था कंसेक्यूटिव सीआरपीसी में, वो तो चेंज कर दिया उन्होंने। तो कायदे से दो सेक्शन से इन वन ट्रांजैक्शन सेक्शन 31 था, और एक कॉन्विक्ट दूसरे सजा पाता है वो ये सेक्शन है। दोनों एक जैसे लिखे हुए थे पहले, बीएनएसएस में चेंज हो गया, वो वाला सेक्शन 31 जो था ये चेंज नहीं हुआ। आज भी अगर दूसरी सजा होती है तो कायदे से पहली सजा काटने के बाद दूसरी सजा काटेगा। लेट्स सी दिस सेक्शन। When a person already going a sentence of imprisonment is sentenced on a subsequent conviction to imprisonment or imprisonment for life, such imprisonment or imprisonment for life shall commence at the expiration of the imprisonment to which he has been previously sentenced, unless the court directs, prerogative is of the court, unless the court directs that the subsequent sentence shall run concurrently with such previous sentence. Consecutive is the rule, concurrent is an exception. Provided that where a person has been sentenced to imprisonment by an order under section 141 in default of furnishing security, while undergoing such sentence he is sentenced to imprisonment for an offense committed prior to making of such order,
the latter sentence shall commence immediately. ये जो सेक्शन है ये डील करता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बाइंडिंग डाउन ऑर्डर से। अगर 107, 8, 9, 10 में आपको मैं बाइंड डाउन कर रहा हूं और बाइंड डाउन के वक्त मैंने आपको बोला इतने 1 लाख का बॉन्ड लाओ प्लस 2 श्योरिटी लाओ, आप नहीं लाए या नहीं ला पाए, आपको मैंने जेल में भेज दिया कि आपको मैंने 1 साल के लिए बाइंड डाउन किया है, जब तक तुम नहीं लाओगे श्योरिटी तब तक जेल में 1 साल के लिए रहो। जब तक आप जेल में थे फॉर नॉट प्रोवाइडिंग श्योरिटीज और उसमें ऑफेंस नहीं किया आपने, वो प्रिवेंटिव एक्शन है, और अब आपको सजा हो जाए और जहां सेंटेंस है, तो कॉमन सेंस की बात है कि सेंटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रिवेंटिव है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सब्सटैंटिव सेंटेंस है वो पहले काटा जाएगा, तो पहले सब्सटैंटिव सेंटेंस काटेगा, बाद में अब डिपेंड करेगा, बाई चांस 1 साल पूरा हो गया, अब ये तो नहीं है ना वो कहेगा नहीं नहीं 1 साल उसके बाद शुरू होगा, वो तो नहीं कह सकता एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो कई बार क्या होता है 1 साल उसी में पूरा हो जाता है। सो जब भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर होगा जो सेक्शन 122 सीआरपीसी में था, यहाँ जो भी बन गया है अभी, उसके अंदर ये होता है कि अगर मैंने आप नहीं दे पाए अपनी श्योरिटी और मैंने आपको बाइंड डाउन, I have imprisoned you for not being able to accord this security, and in the meantime you are convicted of an offense and a substantive sentence is awarded to you, तो वो पहले शुरू होगा, प्रिवेंटिव लॉ वाला बाद में आएगा। आई होप एवरीबडी इज नाउ क्लियर ऑन दिस। जो सबसेक्शन 2 है ये हम बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मुथु रामालिंगम के केस में। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, जहां 2 लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जाती हैं वो हमेशा कंसेक्यूटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा कंकरेंट होती है। ये लाइफ मींस लाइफ, तो मरने के बाद उसके उसके भूत को थोड़ा ना दोगे आप दोबारा। तो इसीलिए यही इसी को बेसिस बनाया था मुथु रामालिंगम ने, और जो हमने 31 में पढ़ा था वो इसी पे बेस्ड था। बहुत क्लियरली कहता है व्हेन अ पर्सन ऑलरेडी अंडरगोइंग अ सेंटेंस for imprisonment for life is sentenced on subsequent conviction to imprisonment for a term or imprisonment for life, the subsequent sentence shall run concurrently. So 4 अगर मुझे लाइफ मिल गई है तो चारों इकट्ठी चलेंगी। मैंने 4 लोगों का मर्डर किया था, 4 लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल गई, चारों इकट्ठी चलेंगी। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर लाइफ में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, मुथु रामालिंगम बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने। सो लाइफ मींस लाइफ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बाई चांस कम्यूट करे सरकार और 4 लाइफ काट रहा हूं मैं, तो कम्यूटेशन 1 लाइफ का होता है, 3 लाइफ फिर भी पड़ी है मेरी। दैट मीन्स अगर मुझे जेल से बाहर निकालना है तो 4 लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट करने पड़ेगा सरकार को, जो कभी नहीं हो सकता, जो 2 भी नहीं होती कभी। एक तो एक ही बड़ी मुश्किल से होती है, कोई डबल मर्डर वाला बैठा है तो वो तो गया, वो तो सारी उम्र रहेगा। I hope all please go through Muthura Malingam. It's a very, very important judgment. So one thing we must remember, term imprisonment का consecutive is the rule, concurrent is an exception. Life imprisonment का concurrent is the rule, consecutive हो ही नहीं सकता, मतलब rule exception नहीं कहेंगे, हो ही नहीं सकता। चलिए we now come to a very, very technical section, set off. Again, a point of huge confusion in many courts. (468) where an accused has on conviction been imprisoned for a term, not being imprisonment in default in payment of fine. So एक चीज याद रखना,
imprisonment in default of fine cannot be set off. Imprisonment in lieu of fine can never be set off. So where an accused person has on conviction being sentenced to imprisonment for a term not being default in fine, the period of detention, if any, undergone by him during investigation, inquiry, or trial of the same case and before the date of such conviction shall be set off against the term of imprisonment imposed upon him on such conviction. And the liability of such person to undergo imprisonment on such conviction shall be restricted to the remainder, जो बचा हुआ है, if any, of the term of imprisonment imposed upon him. सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी जो हम काट चुके हैं उसको माइनस करना. एक एक्यूज को अगर 10 साल की सजा हुई है और वो ऑलरेडी जेल में 6 साल रह चुका है, तो अब वो सिर्फ 4 साल जेल जाएगा. पहला क्वेश्चन ये उठता है, कौन सी चीजें सेट ऑफ में माइनस होती हैं? पॉइंट नंबर 1, जो मेरे पहले 24 घंटे होते हैं जो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती है, वो सेट ऑफ में नहीं आता. दैट इज एक्सक्लूडेड. मेरा सेट ऑफ का मीटर शुरू होता है जब पहली बार मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, सेक्शन 57 सीआरपीसी में. उसके बाद जितनी पुलिस कस्टडी होती है वो सब माइनस होती है. जितनी जेल कस्टडी होती है वो सब माइनस होती है. आई हैव सीन मेनी टाइम्स एंड दिस इज वेरी कॉमन. आई हैव सीन दैट जो पुलिस के टाइम, जो पुलिस के डिटेंशन में पीरियड होता है, वो माइनस नहीं करता कोर्ट. इट वुड अमाउंट टू रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. बहुत कॉमन है ये चीज. वो कहते हैं जेल जेसी कितना रहा वो जेसी का टोटल कर लेते हैं. चाहे मैं कहता हूं 2 दिन भी रहा हो पुलिस कस्टडी में, मैंने पहले ही कहा आपको, पहले 24 घंटे काउंट नहीं होते. एक बार आपने मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया 57 सीआरपीसी में, उसके बाद जितने दिन भी वो किसी कस्टडी में रहा है वो सेट ऑफ में माइनस होता है. सपोज 1 दिन की पुलिस कस्टडी थी, 1 दिन माइनस होगा. कोर्ट्स नॉर्मली जेसी देखते हैं, पीसी नहीं देखते, मतलब पुलिस कस्टडी नहीं देखते. ना ही वकील लोग इसको करते. और अगर 1 दिन भी वो ज्यादा रह गया, उसकी जिम्मेवारी कोर्ट पे होती है. आई कैन ऑलवेज पुट अप अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस अगेंस्ट द जेल एंड मेकिंग द कोर्ट अ पार्टी. आगे से सब लोग ख्याल रखना, जब आप जो जिस भी जज बनो या एडवोकेसी में अभी जाओ, खास ख्याल रखना. यू विल सी, मैं जो बात कह रहा हूं माइनस नहीं होता, कोई रेकनिंग में ही नहीं लेता. क्लियरली वर्ड लिखा है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, प्री ट्रायल एंड ड्यूरिंग ट्रायल, यानी अंडर ट्रायल. So under trial in judicial custody and under trial और सॉरी इन्वेस्टिगेशन में इन पुलिस कस्टडी सारा माइनस होगा. However, कौन सी चीजें और नहीं आती? प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर मैं रहा हूं, वो कवर नहीं होता सेट ऑफ में.
सो एनी डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट प्यूनिटिव, इज नॉट पनिशेबल, वो प्रिवेंटिव है। इसलिए जितने भी प्रिवेंटिव लॉज में अगर मैं बंद हूं, वो सेट ऑफ में कवर नहीं होता। ये मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, अब्दुल अजीज वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर 2003 सुप्रीम कोर्ट, अब्दुल अजीज वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर 2003 सुप्रीम कोर्ट। Preventive detention cannot be set off. दूसरा, imprisonment in lieu of fine cannot be set off. Now a question comes, can there be a set off in life imprisonment? क्या लाइफ imprisonment में set off हो सकता है? Like to quote Ashok Kumar versus Union of India, 1991 Supreme Court. कल को अगर हमने कम्यूट करनी है उसकी सजा, तो सेट ऑफ हो सकता है। कम्यूटेशन का जो लॉ है उसमें यह है कि, और आगे हम सीआरपीसी में ही देखेंगे, आपको कम से कम 14 साल जेल में काटना है। नहीं तो सपोज ए हैज गॉट अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसको हर साल गुड बिहेवियर मिला, 6 महीने, बहुत अच्छा काम किया उसने, बहुत काम करता था, 6 6 महीने हो गया, 14 साल में से 7 साल निकल गए। और एक कोई जैसे 75th एनिवर्सरी आई इंडिपेंडेंस की, ऐसा कुछ आया, 1 साल और मिल गया। कायदे से वो देखते देखते उसके 7 8 साल का रेमिशन मिल गया। अब 6 साल बाद वो कहेगा जी छोड़ो मुझे, 7 साल का मेरा रेमिशन, और जी मेरा तो टाइम हो गया। और ये हुआ, एक मर्डर का आदमी 7वें साल, और कहां हो सकती है ऐसी चीजें, पंजाब में हुआ था, और 7वें साल वो छूट गया और बाहर आ गया, और आके फिर मर्डर कर दिया। मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, दे वर लिविड विद रेज, जैसे मजाक बना दिया आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। तब उन्होंने कोर्ट को, लेजिस्लेचर को बोला कि लॉ बनाओ कि कम से कम 14 साल वो जेल में रहे, तब कॉम्यूटेशन होगा, उससे पहले नहीं होगा। इसीलिए 433A बना था, जो आगे देखेंगे। इसीलिए ये लॉ भी अब यही कह रहा है कि सब्जेक्ट टू 433A कॉम्यूटेशन के लिए सेट ऑफ यूज किया जा सकता है। अब सपोज मुझे 14 साल हो गए और मैंने ऑलरेडी अंडर अंडर ट्रायल कन्विक्शन से पहले 6 साल रह चुका हूं, 8 साल रह चुका हूं, तो 14 और 8 यानी कि अब मेरे 20 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब ये बहुत जस्ट ग्राउंड है टू गेट कॉम्यूटेशन। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस, कि इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कॉम्यूटेशन मिल सकता है, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि कम से कम वो 14 साल अंदर रहे, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मामला है। क्या चीज? हाँ,
वो आएगा, मैं अभी आऊंगा, वो वेलकम टू द रेमिशन, रेमिशन और कॉम्पिटिशन पे आ रहे हैं, नहीं वो अभी भी वो सेक्शन मेंटेन्ड है, अभी आने वाले हैं उस पे थोड़े। चलिए, अब हम एक बहुत ही पेचीदा सवाल डिस्कस करने वाले हैं, जो अगेन बहुत सारे कोड्स गलत जाते हैं। लेट्स टेक टू क्विक एग्जांपल्स। एक थीफ है, कोई कॉन्विक्ट है, वो सपोज एक चोरी की सजा काट रहा है, एक और एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस उसका पुलिस कस्टडी ले लेती है, उसको जेल से लाते हैं और 10 दिन के लिए पुलिस उसकी कस्टडी में रखती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। कल को जब इस दूसरे केस में जहां हमने 10 दिन उसको रखा, क्या उसमें ये 10 दिन का सेट ऑफ मिलेगा? ये मेरा पहला प्रोपोजिशन है। दूसरा प्रोपोजिशन, इकट्ठे दो केस चोरी के दर्ज होते हैं, दोनों की इन्वेस्टिगेशन इकट्ठी शुरू होती है, दोनों में हम सेपरेट पुलिस कस्टडी का ऑर्डर लेके आते हैं। है हमारे पास एक दिन एक ही है, पर दो केस इकट्ठे चल रहे हैं। क्या अब दोनों केसेस में मुझे सेट ऑफ मिलेगा? ये दो अलग प्रोपोजिशंस हैं। सो आई रिपीट द फर्स्ट प्रोपोजिशन। A is already undergoing a sentence, and now another FIR is registered against him, and police now gets a production warrant, takes him out of jail, brings him to police station, and in police custody interrogates from him for about 10 days. 10 दिन की पुलिस कस्टडी मिलती है, उसमें उसको फिर 3 साल की सजा हो जाती है। वो क्लेम करता है कि उसमें 10 दिन माइनस किए जाए क्योंकि मैं पुलिस कस्टडी में था। सो प्लीज रिमेंबर, पहले केस में सेट ऑफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मैं सजा काट रहा हूं ना, वहां तो नहीं माइनस किया मैंने। ये तो है नहीं कि वहां मैंने वहां उसको रोक दिया मीटर के, नहीं 10 दिन वहां अलग काटोगे, तुम बाहर निकल गए थे। तो या तो वहां माइनस करो या यहां माइनस करो, दोनों जगह माइनस थोड़ा ना करेंगे। ये कारण है कि ऑलरेडी कोई अगर जेल में होता है और उसको पुलिस कस्टडी में हम लेके जाते हैं, तो दूसरे केस में उसको सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलता जितना टाइम वो पुलिस में रहता है। इज एवरीबडी क्लियर ऑन दिस प्लीज? सो अगर कोई, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है ना, अगर सपोज 3 साल की उसको कन्विक्शन है, 3 साल का सेंटेंस चल रहा है और वो 10 दिन निकल आया, तो 10 दिन कन्विक्शन क्या नहीं आगे बढ़ाए हम क्या? वो तो वही चल रहा है। अब वो नहीं काट रहा, उसी टाइम पे हम उसको यहां ले आए, तो इसीलिए दोनों नहीं मिलेगा। पर जब हम दूसरे केस में आते हैं, दो अलग केस है, दोनों में अलग मीटर चल रहा है। इस केस में भी सपोज मुझे 10 दिन की पुलिस कस्टडी मिलती है और इसमें भी मिलती है 10 दिन ही टोटल, 20 दिन नहीं है, पर दोनों में 10-10 दिन का मुझे सेट ऑफ मिलेगा। इज एवरीबडी नाउ क्लियर ऑन दिस? इसके ऊपर मैं जजमेंट्स बताना चाहूंगा जल्दी से। ये आपके आई थिंक दिल्ली में भी क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नजाकत अली, 2001 सुप्रीम कोर्ट। जो मैंने आपको दूसरा केस बताया है उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव कस्टडी। दूसरा मैंने आपको केस बताया, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव कस्टडी। It was held that where accused was arrested in two criminal cases and remanded in jail as an under trial in both the cases and was also convicted in both the cases, he would be entitled to set off the period which he had remained in custody in both the cases separately while calculating the total period of sentence. और दूसरा जो पहला मैंने प्रोपोजिशन आपको बताया, उसके ऊपर आई वुड लाइक टू कोट अनदर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1984 सुप्रीम कोर्ट। रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1984 सुप्रीम कोर्ट। When a person is undergoing a sentence of imprisonment imposed by the court after being convicted of an offense
in one case, then during the investigation of another case, he cannot claim the period occupied by such investigation should be set off against the sentence of imprisonment which will be imposed later in this case. दोनों के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं, इन्हीं के बेस पे ये है. Is everybody clear on both these points? So याद रखना, अगर ऑलरेडी सेंटेंस चल रहा है उसका और पुलिस कस्टडी उसको लेके जाती है, तो इस दूसरे केस में सेट ऑफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका वो मीटर तो चल ही रहा था, उसी मीटर में आ गया. बट जब दो सेपरेट केस होते हैं, इसीलिए आई रिमेम्बर 2-3 बार डांट खाई है मेरे इंस्पेक्टर्स ने, मेरे से बहुत बुरी तरह पड़ी थी. वो गधों की तरह 4 केस दर्ज कर लेते थे. तो मुझे आते थे, मैं ये क्या है सर, 4 केस दर्ज किए हमने चोरी के. तो जो पुलिस की भाषा होती है वो मैं यूज करता था, बिकॉज आई टू से इडियट्स, उसको तुम चारों जगह उनको बेनिफिट दे रहे हो. एक खत्म करो पहले, उसको जेसी भेजो, फिर दूसरा करो, क्योंकि अभी कन्विक्शन तो हुआ नहीं है. देन कॉल हिम, देन डू इट. तो हमें पूरा टाइम मिल जाता है अलग अलग का. अब तो क्या हो रहा है कि अगर मैंने 5 केस दर्ज कर लिए, तो रहेगा तो हमारे पास 5 दिन, और फायदा मिलेगा उसको 5 × 5 25 दिन का फायदा मिल जाता है. दैट इज द रीजन व्हाई I never used to allow all the cases to be registered, all the FIRs to be registered simultaneously. It is very beneficial for the चोर. वो चोर का बड़ा फायदा है, वो 5 दिन में गायब हो खत्म हो जाएगा. और कोर्ट में भी आप चुप, वो कहेगा दिए तो है, 5 केसेस में तुम्हें पुलिस कस्टडी दे दी और क्या चाहिए तुम्हें. वो रहा तो 5 दिन ही है. वो 2 दिन तो हम इसको तोड़ने में लग जाते हैं, तीसरे दिन वो बोलना शुरू करता है, और तब तक 5 दिन पूरे, उसको पता है आ गया मीटर खत्म होने वाला, 5 दिन के बाद तो कुछ नहीं होने वाला. 2 दिन और चुप रह जाता हूँ, 5 केसेस में बच जाऊंगा, 5 में पुलिस कस्टडी नहीं मिलेगी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड क्यों क्यों ऐसा. ये सब ये दाव पेच पुलिस के होते हैं जिनको लॉ आता है. बट अनफॉर्चुनेटली आज के जो सब इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं, दे आर नॉट एट ऑल. मैंने एक व्हेन आई वाज एन आईजी, आई हैड गिवन अ रिकमेंडेशन दैट ऑल पुलिस सब इंस्पेक्टर जो बनते हैं, अभी नए जो भर्ती करते हैं हम लोग, उनको पहले 1 साल की लॉ की ट्रेनिंग दो. दे आर नॉट लॉ ग्रेजुएट्स, उनको लॉ का एल नहीं आता. और वो पुलिस ट्रेनिंग में तो वैसे इतना फिजिकल होता है, कहाँ टाइम मिलता है लॉ को, सो रहे होते हैं लॉ की क्लास में. एंड सडनली दे आर सेंट इनटू पुलिस स्टेशन एंड दे हैव नो आइडिया अबाउट लॉ. तो वो फिर जो नीचे वाले कांस्टेबल होते हैं वही चलाते हैं थाना, उसी पे बेस पे चलता है. अब वो भी इतने पक्के अच्छे नहीं है लॉ के, क्योंकि ये बारीकियां आती हैं. तो वो फिर क्या होता है, चोर पकड़ लेता है, वो शो करने के लिए कि सर मैंने 5 केस दर्ज कर दी, 5 चोरियां खोल दी, वो 5 केस दर्ज कर लेता है, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज वेरी स्टूपिड एक्ट. क्योंकि अब जब हम लेने जाते हैं उसकी पीसी, हम 5 केसेस में अलग मांगते हैं. वो कहेगा ठीक है, एक एक दिन मैंने 5 में दे दिया, और साथ में मैजिस्ट्रेट कहता है देखो 5 दिन दे दिया, मैं तो तुम्हें दिया होता है 1 दिन. सो दैट इज द रीजन वाई जो नौसिखिए पुलिस वाले होते हैं, वो सारे केस इकट्ठे दर्ज करते हैं. एक एक करके करना चाहिए. ले जाओ, उसके अंडर ट्रायल होने दो, फिर लाओ, फिर लाओ, फिर लाओ, तो हम ऐसे उसको 2 साल खींचते रहते हैं. दैट इज द राइट वे. अच्छा चलिए, आई होप एवरीबडी इज नाउ क्लियर ऑन दीज वेरी 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 टेक्निकल इश्यूज. एंड एज आई सेड, लॉ, बहुत सारी लॉ क्लियर नहीं होता कोर्ट्स में, बट आई होप माय स्टूडेंट्स आर ऑल क्लियर ऑन दिस मैटर. नहीं, वो नहीं हो सकता. एज पर द न्यू लॉ, if you have detained him more than the final sentence, you have to release him. Acquittal हो गया तो bad luck. Really, there is nothing, no other reason. मतलब I can't claim any benefit. वो ठीक है, मैं कहूंगा, अब वो कहेंगे जल्दी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू करो, नहीं होता, क्या करें, जजों की गलती है, कोई कंपनसेशन नहीं है, जस्ट बैड लक. पिछले जन्म में आपने कुछ किया होगा, हम यही कह देते हैं. कई आते थे मेरे पास छूट के कि सर देखो मैं एक्विट भी हो गया, 4 साल अंदर रह के आया हूँ, या पिछले जन्म में तूने कुछ किया होगा वो बराबर हो गया. वी हैव नथिंग एल्स टू से. आई मीन, किसी की गलती नहीं है. एंड whatever be the reason, you can't hold the judge responsible कि तूने बेल नहीं दी. हमें क्या पता तू कन्विक्ट, हमारे एविडेंसेस थोड़ा है. So once the evidences come, then we can decide.
नहीं देखो ऐसा होता है नहीं, ये नो डाउट इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस फॉर इट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, बट नॉर्मली हम जब कभी भी कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन देते हैं या ये सॉरी जो डिटेंशन देते हैं इन टू द पुलिस और इवन टू कस्टडी, हम ये देख लेते हैं चोर है, मैक्सिमम सजा क्या है, चलो 3 साल है, तो हम उसको 1 1.5 साल तो आधा तो रख ही सकते हैं, तो 1.5 साल तक तो चुप ही रहो, 1.5 साल के बाद देखेंगे किस स्टेज पे पहुंचा है। और नॉर्मली जब शुरू होता है केस तो बेल ले लेते हैं, जैसे ही बेल लेते हैं आप, हम उसको दूसरे केस, वो मैंने बोला ना वो 5 केस पड़े होते हैं, तब हम उसको उठाते हैं कि ये दूसरा केस आ गया, फिर जैसे उसमें बेल मिलती है तो हम बाहर खड़े होते हैं, तो तीसरे में उठाते हैं। 5 साल नहीं उठ रहे वो निकलने देते हैं हम आप लोगों को, ये तरीका होता है पुलिस का। चलिए विल टेक इट अप फ्रॉम हियर इन माय नेक्स्ट लेक्चर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।